ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਹਿੱਸੇ, ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਖਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ, ਹਾਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਦਰਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ, ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਰੀਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ ਜਨਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਮੇਂ ਜਨਤੰਤਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਨਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਥਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद डेमोक्रेसी सो इम्पॉर्टेंट? बहुत शुक्रिया फिर से इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और आपने जो सवाल किया है वो सबसे बुनियादी सवाल है कि एक वाहिद शख्स का जनतंत्र के साथ रिश्ता क्या है। और जब हम जनतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, इन तीनों को हम एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क है। क्योंकि जनतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि हम प्रजा से जन का सफ़र तय करते हैं। प्रजा, जिसको आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसकी संप्रभुता नहीं है, संप्रभु कोई और है, सॉवरेन कोई और है। और यहाँ संप्रभुता हाथ में आ जाती है लोगों के, वो संप्रभु है। तो वो किसी और की चीज़ नहीं है।
यानी उस पर किसी और का हक नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ जनतंत्र में बदलती है वह है हर एक इंसान के पास खुद मुख्तारी का आ जाना। वो खुद मुख्तार है, अपना फ़ैसला खुद कर सकता है या कर सकती है, अपने लिए खुद जिम्मेवार है, और वो किसी और का की पैदाइश नहीं है। तो उसका एक अपना एथिक्स है। और इसके साथ दूसरी चीज़ जो पैदा होती है जिसके बारे में आपने कहा, एथिक्स, जिसके लिए हम हिंदी में नैतिकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो एथिक्स है, तो वो एथिक्स है क्या? क्योंकि जनतंत्र में एक तनाव है। एक तनाव यह है कि जनतंत्र चलेगा कैसे। तो आप चलाने के लिए एक रास्ता निकालते हैं जिसको आप संसदीय जनतंत्र कहते हैं, और उसमें आप कहते हैं कि लोगों को आप वयस्क मताधिकार देते हैं, और वह मताधिकार फिर व्यक्तिगत है, निजी मताधिकार है, यानी वो आपकी चीज़ है, और वह किसी समूह के द्वारा तय नहीं किया जाता है, वो एक कलेक्टिव तय नहीं कर रहा है। लेकिन आखिरकार आप एक कलेक्टिव बनाते हैं फिर, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर आप एक कलेक्टिव के लिए, एक समूह के लिए तय भी करते हैं। तो ये एक बहुत पेचीदा रिश्ता है जिसमें एक वाहिद शख्स अकेला है, उसको फैसला करना है, और अपना फैसला, और वह उस फैसले के लिए किसी समूह का मुंह नहीं देख रहा है कि वो उसे बताएगा, वो चाहे उसका परिवार हो। एक आइडियल दुनिया में, आइडियल दुनिया में, लेकिन यही अगर आप उसूल कहें तो इसका उसूल ये है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक ऐसे शख्स के रूप में खुद को विकसित करेंगे, या उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि ये नैतिकता सिर्फ एक तरफा नहीं है, यानी इस व्यक्ति की नैतिकता ही नहीं है, बल्कि उस समूह की भी नैतिकता है। ठीक। और फिर ये समूह कई तरह के हैं। परिवार का समूह है, जिसको हिंदुस्तान में लोग जाति कहते हैं, उसका समूह है। बिल्कुल। रीजन का है, हाँ, अपने क्षेत्र का समूह है, भाषा का समूह है, धर्म का समूह है। इसी नैतिकता में, डेमोक्रेसी में, इसमें डेमोक्रेसी और हेटरेड, नफरत, ये दोनों एक इकट्ठे भी तो रह रहे ने, इकट्ठे थ्राइव कर रहे ने। मतलब एक ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਿਜੀਮਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ लगेगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि ये सफ़र ज़रा पेचीदा सफ़र है, इतना सीधा चलने वाला सफ़र नहीं है, क्योंकि आखिरकार इसमें उसूलन जो चीज़ मानी जाती है वो ये है कि आप एक इंसान को एक वाहिद शख्स के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसकी अपनी हैसियत होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कलेक्टिव्स बहुत हैं, और आपने अभी खुद कहा कि एक कलेक्टिव ज़ोर लगाएगी, उसके लिए डेमोक्रेसी होगी, और आपको लगेगा आपके लिए डेमोक्रेसी नहीं है। और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मैं पिछली बात को थोड़ा तफसील देकर पूरा कर लूँ, कि जो सबसे अच्छा तरीका निकाला गया डेमोक्रेसी को चलाने का, जमहूरियत को चलाने का, वो है संसदीय जनतंत्र है। और संसदीय जनतंत्र में जो लाजमी तौर पर जो चीज़ होनी है वो ये है कि आपको एक बहुमत बनाना है। अब ये बहुमत आप कैसे बनाएंगे? आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, नफ़रत, है ना। तो जब आप बहुमत बनाएंगे तो, क्योंकि बहुमत के आधार पे आप सरकार बना सकते हैं और फिर आगे चला सकते हैं, तो एक तरीका तो ये होगा कि इस बहुमत में आप लोगों को कहें कि हर कोई शामिल है। तो मैं एक ऐसा बहुमत बनाना चाहता हूँ जिसमें अगर इस कमरे में 25 लोग हैं, तो ये मेरी इच्छा है, मेरा एम्बिशन है कि ये 25 इसमें शामिल हों। लेकिन मैं एक ऐसा बहुमत बना सकता हूँ जिसमें मैं 20 को अपील करूँ, ठीक, और 20 को अपील करने के लिए मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे जाऊँ, यानी 20 को 5 से अलहदा करने वाला रास्ता निकालूँ, और वह रास्ता नफरती हो सकता है कि ये 5 घटिया लोग हैं, आइए, वरना ये जीत जाएंगे, हम इकट्ठे हो जाएं। हाँ, हम इकट्ठा हो जाएं,
और यह तरीका सबसे आसान तरीका है हम्म। जो हम हिंदुस्तान में पिछले सालों में देख रहे हैं, हम्म। अमेरिका में देख रहे हैं, हम्म। यूरोप में देख रहे हैं, हम्म। जिसमें आप एक समूह का चुनाव करते हैं और आप ये कहते हैं ये अब खतरा है, हम्म। आप उसके प्रति नफरत बढ़ाते हैं और आप एक मेजॉरिटी फिर फोर्ज करते हैं। इवेंचुअली तो नंबर्स का गेम भी है ना। आपने एक बीच में शब्द यूज़ किया कि एक वाहिद इंसान, एक वाहिद वोट उसकी होती है और वो अपने आप में प्रभु संपन्न है कि उसने उसका फैसला करना है। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਬਿਲਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਆਰ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੇ ਸਪੀਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2023 ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 1000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ 1225-26 ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ नागरिक का डेमोक्रेसी नाल की रिश्ता होगा? आपने खुद कहा कि हमेशा डेमोक्रेसी में जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो है फ्लूइडिटी और अनसर्टेनिटी। तो आपने अनिश्चितता, आपने एक बहुमत बनाया, लेकिन यह बहुमत अगली बार बदल सकता है। लेकिन जो आदर्श स्थिति है वो ये कि वो बहुमत बदलेगा भी तो समाज का हर तबका उस बहुमत में शामिल रहेगा, आप ये कोशिश करेंगे। लेकिन आपने खुद एक दूसरे खतरे की तरफ ध्यान दिलाया, वो ये कि आप एक परमानेंट बहुमत बना सकते हैं जो कभी नहीं बदलेगा। और यह बहुत खतरनाक है क्योंकि वो बहुमत है और उसमें भ्रम है डेमोक्रेसी का, लेकिन वो एंड ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि वो परमानेंट है, उसमें फ्लूइडिटी खत्म हो गई, इसमें लोगों की मर्जी तो है। हाँ, मर्जी है और नंबर्स हैं। मर्जी तो फिर वो कहते हैं डेमोक्रेसी को एम्पिरिकली ऐसे ही तो देखते हैं। हाँ, मर्जी है और नंबर्स। बिल्कुल, इसीलिए डेमोक्रेसी को सिर्फ वहाँ तक नहीं सीमित रखते हैं। डेमोक्रेसी में फिर हम दूसरी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तब यह डेमोक्रेसी पूरी डेमोक्रेसी होगी। वरना यह डेमोक्रेसी का सफ़र है और आप इसको सबवर्ट कर सकते हैं कि आपने डेमोक्रेसी की तरफ सफ़र करना शुरू किया और आपने सबवर्ट कर दिया, उसी के लॉजिक से उसको सबवर्ट कर दिया। लॉजिक नंबर्स का है, लॉजिक मेजॉरिटी का है, आप उसी लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि भाई हम तो ये लॉजिक अपना रहे हैं, हमने नंबर्स इकट्ठा कर लिए, आप मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तब मुझे ये कहना पड़ता है कि डेमोक्रेसी में ये दूसरी चीज़ें हैं जो अगर नहीं हैं तो मैं उसे डेमोक्रेसी नहीं कहूँगा। मैं आपकी ये किताब देख रहा था कविता में जनतंत्र जी, और ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੂਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਸੀਰੀਅਸ? ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੇ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਫੇਰੋਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੈਲੀਫੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਫੀਡਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ? ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ? ਪਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੋਨਾਰਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਟਰਾਈਬਲ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਰਅਸਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ नेम नहीं है तो ये कभी भी मिट सकता है। मिटने को कभी भी मिट सकती है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में, जैसे इसलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेसी, जब आप कहते हैं डेमोक्रेट होना, डेमोक्रेसी, तो उसके साथ दूसरी आप बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं, उनके बिना डेमोक्रेसी नहीं होती है। जैसे आप डेमोक्रेसी के साथ याद करते हैं आज़ादी को, अगर आज़ादी नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। फिर आज़ादी किसकी है? जिसको मैंने कहा सॉवरेंटी, सॉवरेन कौन है? क्या सॉवरेन पार्टी है? क्या सॉवरेन स्टेट है? और आप उसके सामने सॉवरेन नहीं हैं। पावर कहाँ से निकलती है? क्या वो लोग हैं? और लोग जो कलेक्टिव हैं, इंडिविजुअल्स के, वाहिद शख्स के, और क्या वे सब के सब इतना ताकतवर महसूस करते हैं कि अगर वे कहेंगे तो चीज़ें बदलेंगी? आप समाजों की तुलना करते हैं, आप समाजों में लोगों को देखते हैं, कौन सा समाज है जिसमें लोग इतना ताकतवर महसूस करते हैं कि वो अपने मुताबिक चला सकते हैं अपने समाज को? तो सबसे पहली चीज़ है आज़ादी, और आज़ादी की ललक कोई आधुनिकता के साथ नहीं जुड़ी हुई है। वो तो स्पार्टकस से लेके है, बिल्कुल। आपके दिमाग में भी वही नाम आया जो मेरे दिमाग में था, स्पार्टकस। तो स्पार्टकस उस वक्त हुआ था क्योंकि आज़ादी की ये तड़प थी। आप उसके पहले के माइथोलॉजीज को भी देख ले सकते हैं, आप प्रोमेथियस को देख सकते हैं, आप बाकी लोगों को देख सकते हैं। तो वह तड़प एक प्रीमोर्डियल चीज़ है, उसके साथ आधुनिकता जुड़ती है, और आधुनिकता फिर बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आयत करती हैं। इसलिए जो मेरा होना है, वो मेरा होना कोई अकेलेपन में मेरा होना नहीं है, वो एक तरह के, आप कह सकते हैं, रिश्तों का जाल है जिसके बीच में खड़ा हूँ, और मुझे उन रिश्तों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है जिनके बीच में मैं हूँ। और ये डेमोक्रेसी के बिना ये सब मायने नहीं रखेगा, मायने नहीं रखेंगे, बल्कि उन रिश्तों को डेमोक्रेटाइज करना भी आपका काम है, जो आपके परिवार से लेकर, आपके सामुदायिक जीवन से लेकर, और फिर राजकीय जीवन तक जाता है, सरकार चलाने तक जाता है। जैसे एक लड़की या एक लड़का अपनी मर्जी से अपने साथ रह सकते हैं कि नहीं, ये सवाल डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि नहीं। या आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इसको हम छोड़ दें, उसके बाद भी डेमोक्रेसी रहेगी। अगर ये नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप एक ऐसा कानून लाते हैं जो उत्तराखंड लाया, कि जिसमें आप ये कहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद रहेंगे, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। मोहल्ले के प्रधान को भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। हमें कहना पड़ेगा ये डेमोक्रेसी हटी। और इसलिए हम हर एक चीज़ पे संघर्ष करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि एक औरत अगर अपने पति को मना कर दे कि वो उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकता, तो इसको हम मानते हैं कि नहीं, कि ये सबसे अहम सवाल है डेमोक्रेसी का जो क्वेश्चन है। तो इसलिए कोई भी सवाल जो किसी एक व्यक्ति की मर्जी को कमतर करता है, अगर उस सवाल को आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी जगह ख़त्म कर रहे हैं। आपने जो ये पूछा था कि होना, ये होना ये है जिसमें आप हर किसी के होने को मुमकिन भी करते हैं। सो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ऐसा कोई कारण, कोई धर्म, कोई ईश्वर, कोई सौंदर्य बोध नहीं है, कोई ऐसी एस्थेटिक्स नहीं है जिसके लिए मानवता की बलि दी जा सके। बिल्कुल। नाउ इफ़ आई टेक दिस, पर इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇ ਹੀ ਨੇ,
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਥੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਟ ਲੈਕਸ ਐਨ ਐਸਥੈਟਿਕਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੌਂਦਰਿਆ ਮੀਮਾਂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੌਂਦਰਿਆ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੇਟ, ਜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ? इस पर फौरन कुछ भी कहने में मैं अपने आप को बहुत तो कुछ आपके बहुत अंदर से आना चाहिए, जाके अखलाक की गली में जाके फ्रिज चेक करके आदमी मारने के लिए। हाँ, तैयार नहीं मानता, लेकिन उसकी एस्थेटिक्स होती है। जैसे नफरत की अपनी एक एक्सटेसी होती है, उसका एक आनंद होता है, एक्सिलरेशन है, तो मारने उसका एक्सिलरेशन है, उसका प्लेजर है। अगर इन सारी चीज़ों को आप जोड़ कर देखें, एस्थेटिक्स जो अंततः आपको प्लेजर देती है, तो उसका प्लेजर है। लोगों को मारने का अपना प्लेजर है, और सैडिज्म है। तो दरअसल जो प्रॉमिस है, जो वादा है, वो यही है, इस प्लेजर का वादा है, इस वजह से आप ये करते हैं। और उसके बाद आप उसकी भयानकता को शायद बहुत बाद में देख पाते हैं। तो वो चाहे फैसिज्म हो, या अपने हिंदुस्तान में भी हमने कई बार इस चीज़ को देखा है। 1984 में देखा, उसके पहले 47 में देखा था, 47 में देखा, फिर हमने 89 में देखा, और यूरोप में 83 में देखा, नाजी जर्मनी ने देखा, यूगोस्लाविया ने देखा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक एस्थेटिक्स ज़रूर है जिसमें आप, और एस्थेटिक्स में एक और चीज़ क्या होती है, जिसमें खुद आप अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। तो अगर मुझे इसका एहसास दिलाया जाने लगे कि मैं ताकतवर हूँ किसी और के सामने, और मैं किसी को डिसएम्पावर कर सकता हूँ, इससे बड़ा मज़ा कोई और मज़ा नहीं है। मस्जिद के सामने जाके नारे लगाना जय श्री राम कुछ के, भी, या किसी को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करना, इससे बड़ा मज़ा और कोई मज़ा नहीं है। लेकिन लोगों को ये बतलाना पड़ेगा कि दरअसल एक मज़ा ये है, और एक दूसरा आनंद कोई और है, जिसमें आप हाथ पकड़ के किसी को खड़ा करते हैं, किसी के साथ चलते हैं। या एक आनंद वो है जो, और इस उदाहरण को मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, और मुझे कभी भी नहीं भूलता। अभी मैं गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखता हूँ, और अमेरिका का रिस्पांस देखता हूँ। तो अमेरिका में जो कल MIT ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिंदुस्तानी मूल की लड़की खड़ी हुई, और उसने फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बात की, उससे अधिक खूबसूरत और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। या मैं अमेरिका की ही लड़की को याद करता हूँ, यहूदी लड़की थी, राशेल कोरी, जो कई साल पहले अमेरिका से चलकर 19 साल की थी, फ़िलिस्तीन पहुँची, और एक फ़िलिस्तीनी के घर के सामने खड़ी हुई, जिसको गिराने एक इजरायली बुलडोज़र आ रहा था, और उस इजरायली बुलडोज़र ने राशेल कोरी को कुचल दिया। वो एक साथ एक बहुत खौफनाक और एक बहुत खूबसूरत लम्हा है। ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਨਾਮੈਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਅਨੁਭਵ होएगा। आप उस एस्थेटिक्स को हो सकता है टैंक मेरे ऊपरों लंघ जाए, पर एक ताकत है। राशेल कोरी को आखिरकार कुचल दिया गया, टैनामेन वाले को भी कुचल दिया। लेकिन राशेल कोरी का वो खड़ा होना, उसकी जो एस्थेटिक्स है, हम क्या वहाँ पहुँचना चाहते हैं या नहीं। तो जिसको मैं शुरू में कह रहा था कि ये दरअसल हमारी महत्वाकांक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा मोरल एम्बिशन क्या है, और हम एम्बिशियस हैं कि नहीं हैं, या हम एक सीमित व्यक्तित्व बन के रहना चाहते हैं। जिनका उदाहरण आपने दिया, चीन। क्यों चीन में एक कलाकार एक चित्र बनाना चाहता है और उसके लिए जला वतन होने को तैयार है। इतना बड़ा खतरा ईरान में कोई एक फिल्मकार क्यों उठाता है कि वो एक फिल्म बनाएगा, उसको पता है वो फिल्म बनाएगा तो वो हो सकता है जिंदगी भर के लिए जेल चला जाए। बहुत सारे लोग, तो आप समझ सकते हैं कि यह खतरा वो क्यों उठा रहा है।
तो ये जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है जो वो क्रिएट कर रहा है हम्म, या जो वो खुद हासिल कर रहा है, दूसरों के लिए नहीं, हम्म। पहले तो मैं जब बनाता हूँ तो खुद के लिए करता हूँ, हम्म, वो इतना बड़ा एम्बिशन है हम्म। कि उसके लिए मैं अपनी पूरी आज़ादी कुर्बान कर सकता हूँ, मैं जेल में रह सकता हूँ, मुझको पता है इस बात का। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹਿਰੂਵੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸਨ, 7 ਦਹਾਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 200 ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ? ਹਾਊ ਡੂ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਟਰਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं, एक तो है, डेमोक्रेसी डिड नॉट डू एक फॉर तो देम है व्हाट दे कि वांटेड। अगर डेमोक्रेसी के सवाल को या जमहूरियत के सवाल को हम सिर्फ स्टेट के सवालों के साथ जोड़कर छोड़ देते हैं और बाकी जगहों पर उनकी परवाह नहीं करते, उनकी बात नहीं करते, वो चाहे हमारा स्कूल हो या जैसा हमने कहा कि हमारा आपस का मेल जोल हो या बाकी चीज़ें हों, और वो सिर्फ स्टेट तक और थोड़े सक्रिय अर्थ में राजनीति तक सीमित हो जाता है, बाकी हमारी ज़िंदगी का वो सवाल नहीं रहता है, तो फिर डेमोक्रेसी की जगह धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि खुद आपने कहा और मैं ये मानता हूँ कि हम सब की वायरिंग अगर हम देखें या प्रोग्रामिंग, हम सब की एक तरह से फ्यूडलिस्टिक प्रोग्रामिंग है। तो अभी भी हम कह देते हैं अक्सर राजधर्म, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत आसानी से कह देते हैं कि राजधर्म है, ईडीएम भी वही है, और अभी भी हम प्रधानमंत्री को राजा कह के संबोधित कर देते हैं। तो मेरी समझ है कि हमारी ये प्रोग्रामिंग जो सैकड़ों हजारों साल में हुई है, उस वायरिंग को बदलना और रीवायरिंग करना एक लंबा काम है। और फिर डेमोक्रेसी, ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी और मार्क्सिस्ट ये मानते हैं कि इंटरनेशनलिज्म के बिना सोशलिज्म नहीं आ सकता, लेकिन मेरी समझ है कि डेमोक्रेसी में इंटरनेशनलिज्म सबसे ज़रूरी है, कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है तो दूसरे हिस्से में भी कमज़ोर हो जाती है। तो जो ਪੈਲਸਤੀਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ये इससे तय होता है। तो और इसलिए फ़िलिस्तीनियों के प्रति आपकी सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। आप इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि आप ये कहें कि नहीं मेरे देश में तो डेमोक्रेसी रहेगी, वहाँ जो चाहे जो हो जाए। तो आपको उसमें भी एक सक्रिय भूमिका निभाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यह, जैसा मैं कह रहा था कि हमेशा डेमोक्रेसी के साथ ये खतरा लगा हुआ रहता है कि वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके भीतर ही ये चीज़ है जो आपने कहा खुद ही, मेजॉरिटी क्रिएट करना। और आप मेजॉरिटी क्रिएट करते हैं, फिर आप मोनार्क चुन लेते हैं, और फिर वो एक डेमोक्रेटिक मोनार्किज्म हो जाता है या मोनार्किकल डेमोक्रेसी हो जाती है। कि बहुत सारे लीडर्स ने समाज ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਤੇ, ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਜ਼ ਇਫ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति ने खुद अपने आप को बहुत सीमित कर दिया है, महदूद कर दिया कुछ चीज़ों तक, कि उसका काम चुनाव लड़ना है, उसका काम सरकार बनाना है,
उसका काम कानून बनाना है, बल्कि कानून बनाने को भी उतना महत्व नहीं दिया गया। कानून बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। कानून बनाने में आप कंसल्टेशन करते हैं, वो एक डिलिबरेटिव प्रोसेस है। आप उसे भी भूल गए, उन्होंने डेमोक्रेटाइज भी नहीं किया। हाँ, और आपने सोचा कि चूंकि मेरे पास अब 300 की संख्या है, तो मैं इस 300 की संख्या के आधार पे कानून बना लूंगा। सारी ले, करते वो बेचारे ने क्यों करना, वाइस चांसलर भी, क्योंकि वाइस चांसलर बन गया इस करके अपने हिसाब ਨਾਲ चलाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी चौधरी बन गया, कोई भी संस्था है, मैं यूनिवर्सिटी, आपने वाइस चांसलर कहा, मैं यूनिवर्सिटी को ही देखता हूँ कि आप एकेडमिक काउंसिल में हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जिनको कहा जा सकता है कि उनसे ज्यादा आजाद दिमाग और कौन हो सकता है, प्रोफेसर्स हैं। लेकिन फिर वहां वो क्यों बर्ताव करने लगते हैं कि वाइस चांसलर जो कहता है वो सीधे हाथ उठा देते हैं। या मैं अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के दिनों को भी याद करता हूँ, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी, पार्टी की लीडरशिप की मर्जी के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। लाइन आती थी पीछे से, लाइन आ गई है तो उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। तो ये एक बुनियादी चीज है, हमारी एक बुनियादी कमजोरी है, जिसमें हम आदेश का पालन करने में ज्यादा इत्मीनान महसूस करते हैं, और रेजिस्ट करने में हमें बहुत मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, और हमें डर भी लगता है आइसोलेट होने का, कि आप खड़े हैं, लीडरशिप ने यह प्रस्ताव दिया और आप खड़े होकर उस प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर आपको कैसे खुद देखा जाएगा। तो जे ये हालात ने ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤੂਲ ਨਹੀਂ ਮਚ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई परलो नहीं आई पई। हाउ कम वी आर नॉर्मल। मैं जैसे ही ब्रेक के बाद आता हूँ, ये सवाल थोड़े तो पूछना है, आर वी नॉर्मल बिकॉज वी हैव गिवन अप। विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्रेक। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ, ਆਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅਪ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। नफरत हर रोज़ हो रही है, हेट इज़ एवरीवेयर। कोई कित्थों तक लड़ेगा? हर गली मुहल्ले की नुक्कड़ ते हेट है, हर व्हाट्सएप ग्रुप दे विच हेट है, अखबार दे हर पन्ने दे उत्ते हेट है। कदी कोई मस्जिद खुदाई करन लग जाता है, कदी साडे इत्थे हिमाचल दे विच कोई ना कोई मस्जिद, उस हुण संजौली वाली मस्जिद लभी हुई है, ये अज तीसरी मंजिल गैर कानूनी है, फिर दूसरी गैर कानूनी हो जाती है, हुण पता लगता है कि ग्राउंड फ्लोर ही मस्जिद ही गैर कानूनी है। सो ऐसे विच वन रिएक्शन कुड बी दैट इट्स हार्ट ब्रेकिंग, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਸੇਵਿੰਗ ਮਾਈ ਸੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। How do you manage this? देखिए कई बार हम इसको आप इसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक उस शख्स की हापुड़ में जिस व्यक्ति को मार डाला गया मॉब लिंचिंग में, जिसको आप गौरक्षक कहते हैं, उनके द्वारा, उसका परिवार निरक्षर परिवार है, लेकिन उसके भाई ने अदालत में लड़ाई जारी रखी। वो क्या कर रहा है? उसको बहुत सारा प्रलोभन दिया गया, उसको धमकी दी गई, उसको लाखों रुपए का प्रलोभन दिया गया। वो छोड़ सकता था, भाई जा चुका है, वो लाखों रुपए ले सकता था, बैठ जा सकता था। वो क्यों उस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है? वो किसी बदले की भावना से नहीं लड़ रहा है। या बिल्किस बानो क्यों लड़ती रही 15 साल तक? आप अगर बिल्किस बानो की जिंदगी को देखेंगे तो वह पूरे देश में भागती रही, एक जगह से दूसरी जगह बदलते हुए। बिल्किस बानो और उसका शौहर क्या कर रहे थे? उनको ये पता नहीं है, मतलब वो शायद इस बात को वैसे नहीं कह पाए जो आप कह रहे हैं कि हम जमहूरियत बचा रहे हैं या हम जनतंत्र बचा रहे हैं। तो ये अक्सर आप ये चीज देखते हैं, जो सबसे मामूली लोग हैं, सबसे कमजोर लोग हैं। मैं अभी राहुल भाटिया की किताब पढ़ रहा था, जो
आइडेंटिटी आइडेंटिटी द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। हाँ, जिसमें एक शख्स है जो गवाही देने आता है अदालत। आपको उसका नाम या नासिर या निसार उसका नाम, निसारी आई थिंक। हाँ, वो बार बार आता है, तारीख पे तारीख। क्यों आ रहा है वो? क्यों वो नहीं हिल रहा है? क्या उसको ये मालूम है कि वो दरअसल जो कर रहा है वो जमहूरियत बचाने का काम है, डेमोक्रेसी बचाने का काम है? तो मैं प्रायः हैरान हो जाता हूँ जब मैं ज़किया जाफरी को मैंने देखा कि मैं ज़किया जाफरी से 3-4 बार मिला हूँ, अब गुजर गई, लेकिन वो क्या था कि ज़किया जाफरी 20 साल तक लड़ती रही। सबसे बड़ी अदालत ने ज़किया जाफरी को डांटा कि तुम ज़रूर कोई साजिश है जिसके चलते तुम इतने दिन तक लड़ रही हो, और तीस्ता से तलवार को कहा कि ये भी साजिश में शामिल है क्योंकि ये इनका साथ दे रही है। ये डेमोक्रेसी है जो ज़किया कर रही हैं। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वे लोग इसको नॉर्मल मानने से इनकार कर देते हैं जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, सबसे निरक्षर लोग हैं, सबसे मामूली लोग हैं, और वे उस लड़ाई को लड़ते हैं जो जिसको इंसाफ की लड़ाई कहा जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जमहूरियत को आप बिना कुछ और चीज़ों के नहीं देख सकते, जिसमें एक आज़ादी है, दूसरा इंसाफ है। मुझे तो जी नॉर्मल शायद हम में से कुछ लोग मान लें, मैं उस बात को भी गलत नहीं मानता अगर कोई विड्रॉ कर जाता है, कोई विड्रॉ कर जाए। मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोगों का प्रिजर्व करना अपने आप को ज़रूरी है और वो करते हैं। मैं ऐसे वाइस चांसलर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को बिलो द रेडार रखा है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये पढ़ाने दीजिए, चुपचाप नजरों में ना आ जाएं, हमें कम से कम ज्योग्राफी क्या है, फिलॉसफी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, हमें इसका सेंस जिंदा रखना है। तो हम अभी रडार के ऊपर नहीं जान, और मैं उसकी कीमत को समझता हूँ, क्योंकि उसको मुझे रोमिला थापर ने कहा था कि कल्चरल रिवॉल्यूशन में के बाद कल्चरल रिवॉल्यूशन में एक तरह से डिवास्टेशन हुआ, और चीन को उसके बाद समझना मुश्किल हो गया कि साइकोलॉजी करना इसका क्या मतलब होता है, फिलॉसफी, क्योंकि माओ ज़ेडुंग समाज को शऊर कैसे दें, और आप उसने बाहर के लोगों को बुलाया। तो मैं उसकी कीमत भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यह ख्याल, जमहूरियत का ख्याल बिना आर्टिकुलेट किए हुए वे लोग जिंदा रखते हैं जिनको आप सबसे मामूली लोग कहते हैं। आपने अदालतों की बात की, मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा था कि सैकेंड वर्ल्ड वार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨਸ ਬੰਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਨੋਟ ਅਫਰੇਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ। तो उसने पूछा आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग। लोगों ने कहा हाँ अदालत काम कर रही है, अदालतां 'ਚ इंसाफ हो ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ इंसाफ हो ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਐਨੀਮੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਟੂ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਟਰਮ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਨੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵਰੂਪ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬੈਟਰ ਸਵਰੂਪ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ? और एक पुराना थीसिस है भी है ना कि कैपिटलिस्ट ने दरअसल इंडियन सोसाइटी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਬਿਆ ਕੁਚਿਆ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਛੂਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਦਿਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਹੈਵ ਬੈਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹਾਊ डू यू डील विद दैट? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कैपिटलिज्म और साम्राज्यवाद, अब साम्राज्यवाद को बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मार्क्स की भाषा को ले लें कि वो कैपिटलिज्म का ही एक रूप है, या फिर अब जिस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं कि नए ढंग से बदला हुआ उपनिवेशवाद है जो आ रहा है। आपको एहसास नहीं होता है लेकिन आप उपनिवेश हैं। तो और ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसको आखिरी तौर पर रिजॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कैपिटलिज्म की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है
वो कमज़ोरी है जिसको मार्क्स ने इशारा किया था, वो ये कि वो आपको एलियनेट कर देती है, आपको खुद से एलियनेट कर देती है। तो आपका आपा गायब हो जाता है, आप खुद को पहचान नहीं पाते हैं। और डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट अगर किसी चीज़ का है तो वो आपको आपकी खुद मुख्तारी सुपुर्द करने का है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कैपिटलिज्म में और डेमोक्रेसी में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि कैपिटलिज्म इंसान से उसका वजूद छीन लेता है, और इसमें एक हद तक सच्चाई है। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल है कि अब तक, और फिर कैपिटलिज्म की भी उम्र बहुत नहीं हुई है। बिल्कुल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शायद हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की खोज में हैं जो आर्थिक व्यवस्था सामंतवादी नियमों से आज़ाद हो, और वो जो पूंजीवाद की चालाकी और चतुराई है उससे भी आज़ाद हो सके। हम वो अभी तक खोज नहीं पाए। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦਰਅਸਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? बिल्कुल। कि ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? इस बात को खुद बहुत सारे जो कैपिटलिज्म के थ्योरिस्ट्स हैं वो मान चुके हैं कि ये एक तरह से कैपिटलिज्म की क्राइसिस है, जो क्राइसिस परपिचुअल है। एक के बाद दूसरी क्राइसिस में वो पड़ता है, तीसरी क्राइसिस में वो पड़ता है। ठीक है कि वो जिंदा है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि वो विक्टोरियस हुआ है। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सोशलिज्म हार गया, कैपिटलिज्म जीत गया, लेकिन कैपिटलिज्म लगातार एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस में क्यों कूद रहा है, यह भी प्रश्न है, और वो उसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाया। अच्छा, आखिरी यानी अगर कैपिटलिज्म यही है, कैपिटलिज्म का सबसे अच्छा चेहरा अगर डोनाल्ड ट्रंप है, तो आपने एस्थेटिक्स की बात की थी, तो कैपिटलिज्म का एस्थेटिक्स क्या है? या नेतान्याहू है, या डोनाल्ड ट्रंप ते नेतान्याहू ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ नेतान्याहू। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, if that is the face of That is capitalism. that is capitalism actually in functioning. Which Donald अच्छा, Trump is ਹੁਣ एक बहुत promising. ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ, I only have seconds to go. Is revolution the answer? मैं ये बहुत यूटोपियन ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਹੇਟ। ਇਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਨ ਆਨਸਰ? Is that kind of, I'm asking you, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, वो एक सपना गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनकलाब का, क्योंकि आपने कहा बहुत मुख्तसर जवाब इसका होना है, इनकलाब जिस तरह वो समझा गया है अब तक और जिस तरह प्रैक्टिस किया गया है, वह जवाब नहीं है इनकलाब। क्योंकि हमने ये देखा है कि, और ये क्लीशे बात है कि इनकलाब खुद, उसने जिसको पैदा किया उसको खा गया, और इनकलाब का इतिहास यह है। तो फिर यह इनकलाब जवाब नहीं है। लेकिन इनकलाब अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है, और हमें खोजना पड़ेगा कि उसे हम जमहूरी तरीके से कैसे करें, क्योंकि जमहूरियत अपने आप में एक इनकलाब है सोचने के तरीके में। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਰਘੂਵੀਰ ਸਹਾਇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਖਲਾਕ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਆਬ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਆਬ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਘੂਵੀਰ ਸਹਾਇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ख़त्म करना चाहना। उन्होंने किया, इस जीवन में मैं प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इस जीवन में मैं प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी शायद हरगिज़ नहीं बनूं, पर होने का अधिकार हमारा है। भारत का भावी प्रधानमंत्री होने का ਅਧਿਕਾਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ख्वाब तो उनके बच्चों का भी है। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।